In this part of the unit, you will learn about force acting between two current carrying straight conductors of infinite length. These are two current carrying conductors. In first conductor, I1 current is flowing, and in second conductor, I2 current is flowing. At first, we are taking same directions of flow of current through both the conductors. We know that any current carrying conductor, when placed in magnetic field, it experiences force. Now question is, where is magnetic field here? Here you can see first conductor is lying in the magnetic field of second conductor. So because of magnetic field of second conductor, this first conductor will experience force, and because of magnetic field of first conductor, this second conductor will experience force. So firstly we will find force acting on second conductor due to magnetic field of first conductor. We know the expression for force acting on any conductor when it is placed in magnetic field and when current flows through it. That expression is given by F is equal to I L cross B. This expression we have already studied. This is the expression which shows force acting on any current element IL when it is placed in magnetic field. अब आप सेकंड वाले कंडक्टर पर फर्स्ट वाले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसको पहले निकालिए. दैट विल बी F21. F21 means force acting on second conductor due to magnetic field of first conductor is equal to current that of second conductor. I की जगह पर I2 आ जाएगा. What will be L? Suppose L length of this conductor is taken. Suppose this length is L. This is a conductor of infinite length, so L length of the conductor is taken. Its length is L. So L की जगह पर आप कैपिटल L लिख सकते हैं. Cross B. B is magnetic field due to first conductor, and that will be B1. It is directed vertically inwards, shown by crosses. क्रॉस जो यहाँ पर दिखाए गए हैं ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं और ये होगा B1. L cross B1. So F21 is equal to I2 times L cross B1. Expand it. The angle between L and B1 is 90 degree. So F21 in magnitude will be equal to I2 times LB1 sin 90 degree. That is F21 is equal to I2 LB1. How much will be the force experienced by unit length of this second conductor? That will be divide this force by length L. तो यूनिट लेंथ इस सेकेंड कंडक्टर का कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? दैट विल बी F21 बाई L इज इक्वल टू I2 B1 इज इक्वल टू I2 B1 की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर से जो इनफाइनाइट लेंथ का है उस r डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? यू हैव स्टडीड. दैट इज म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई R. म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R. ये क्या है? B1. कहाँ पर? R डिस्टेंस पर इस कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाहें इस फर्स्ट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है इतना मैग्नेटिक फील्ड उससे दिया जाता है. सो दिस कैन बी फर्दर मॉडिफाइड एज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R. ये क्या है? F21 बाई L. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर.
फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एज इट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. सो वी विल टेक पर यूनिट लेंथ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस सेकंड कंडक्टर, वो आएगा F21 by L, that is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi r, where mu naught is absolute permeability of free space. अब आप आ जाइए इस वाले कंडक्टर पर, मीन्स फर्स्ट कंडक्टर पर सेकंड वाले करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा फर्स्ट कंडक्टर के द्वारा, दैट यू विल कैलकुलेट. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, F12 पहले आपने क्या निकाला था F21, अब आप क्या निकालेंगे F12. 1 पर 2 के कारण मतलब 2 के करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, F12 इज इक्वल टू हाउ मच, अब क्या आएगा यहाँ पर F12, तो करंट किसका लेंगे आप I1 इंटू L, इसकी भी आप L लेंथ लीजिए, जितना यहाँ पर L लिया है उतना ही आप यहाँ भी ले सकते हैं, L क्रॉस. अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसका आएगा, सेकेंड वाले कंडक्टर का, B2. Like this you can do. Expand it. What is the angle between L and B2? B2 is, you can see it is vertically upwards. अब आप यहाँ पर देखिए, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर फर्स्ट, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है वर्टिकली आउटवर्ड्स. इसके कारण कर्लिंग ऑफ फिंगर्स shows the direction of magnetic field lines. Tangent drawn at any point gives the magnetic field at that point. अब यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, तो वर्टिकली आउटवर्ड्स इसकी डायरेक्शन आती है दिस. सो एंगल बिटवीन L and B2 will again be 90 degrees. It can be written as I1 times L B2 sin 90 degree, और F12 in magnitude will be equal to I1 times L B2, और F12 by L is equal to I1 B2. This is I1 B2. अब आप B2 की वैल्यू रख देंगे इसमें, पर यूनिट लेंथ इस फर्स्ट कंडक्टर का कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट विल बी F12 by L. So F12 by L is equal to I1 टाइम्स हाउ मच, B2 कितना होगा, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की डिस्टेंस R है, ये आ जाएगा. तो ये एक्सप्रेशन आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, इट सेम एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग हियर ऑल्सो. F21 by L means force experienced by unit length of first conductor will be equal to mu naught I1 I2 by 2 pi r. मीन्स फर्स्ट कंडक्टर जितना सेकंड कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सेम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय सेकंड कंडक्टर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर. अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, आप डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं. व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच आवर इंडेक्स फिंगर, middle finger and thumb of our left hand in such a way that all of three are mutually perpendicular to one another, and if index shows the direction of magnetic field and this middle finger shows the direction of current flowing through it, then this thumb will show the direction of force acting on that conductor. अब आप इस कंडक्टर को देखिए, इस कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, वर्टिकली आउटवर्ड्स टू दी प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, ऐसे हमने दिखाया है. करंट ऊपर को इसमें फ्लो कर रही है, तो फोर्स इस कंडक्टर की तरफ इसमें लग रहा है. ये कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, F1 पर 2 से जो फोर्स लग रहा है उसको आपने क्या लिखा, F12. अब F21 की बात कह रहे हैं, F2 में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली इनवर्ड्स है, करंट की डायरेक्शन ऊपर को है. आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, करंट ऊपर को है, तो फोर्स किस तरफ को लग रहा है, पहले वाले कंडक्टर की तरफ. दिस विल बी द
डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड कंडक्टर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हम रिवर्स कर दें तो उस केस में क्या हुआ? दीज आर टू कंडक्टर्स, I1 ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है, इसमें I1 की डायरेक्शन सेम रखिए और I2 की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं। I2 की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब आप ये फर्स्ट वाले कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डाउनवर्ड्स होगा, वर्टिकली इनवर्ड्स। और सेकंड वाले कंडक्टर से फर्स्ट वाले में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगेन इट विल बी डाउनवर्ड्स, वर्टिकली इनवर्ड्स। तो F12 अगर आप निकालें तो इस केस में क्या होगा? F12 फर्स्ट वाले कंडक्टर के L लेंथ में कितना फोर्स लगेगा? F12 1 पर सेकंड से जो फोर्स लग रहा है I1, इस पर जो करंट इंटू L क्रॉस B2, L B2 इन मैग्नीट्यूड दैट विल बी सेम। F12 की डायरेक्शन देखिए क्या होगी? दैट अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय index finger, current shown by this middle finger. So this thumb will show the direction of force acting. As you can see, force acting on first conductor due to second conductor is outwards. तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? F12 की, यह है डायरेक्शन F12 की। अब F21 की देखिए, F21 के लिए आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाएंगे? इंडेक्स फिंगर से। करंट कहां आ रही है? अब नीचे आ रही है और फोर्स कहां को आ रहा है? बाहर को लग रहा है। देखिए आप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड कंडक्टर, दैट विल बी F21। सो बोथ आर एक्टिंग आउटवर्ड्स, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पहले केस में जब करंट की डायरेक्शन सेम है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरे केस में जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट है इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से, तो फोर्स क्या हो गया? रिपल्सिव फोर्स हो गया। तो यहां से आप एम्पियर की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। डिफाइन 1 एम्पियर अगर आता है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? वी हैव सीन F12 बाई L इज इक्वल टू F21 बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। दिस इज द एक्सप्रेशन वी हैव गॉट। F12 by L, force experienced by unit length of first conductor is equal to force experienced by unit length of second conductor is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi R. If we put R is equal to 1 meter, I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere, mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere, then F12 by L is equal to F21 by L is equal to, putting up the values, you will get 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. 1 ampere is the current which when passed through two straight conductors of infinite length separated by a distance of 1 meter in vacuum, unit length of each conductor if experiences a force of interaction of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter, then the amount of current flowing through each conductor will be said to be 1 ampere. 1 ampere is the amount of current which when passed through each straight conductor of infinite length separated by a distance of 1 meter in vacuum, unit length of each conductor experiences a force of interaction of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. Why force of interaction? When direction of current is same, that will be force of attraction. When direction of current is opposite in both the conductors, the force of repulsion will be experienced by both the straight current carrying conductors. That's all about this topic. Thank you.